Welcome back to our channel. If you are new to Python programming and looking to level up your skills, you are in the right place. In today's video, we will be sharing some invaluable tips and tricks that will help you unlock the power of Python and become a more confident programmer. Let's get started. So firstly, we will discuss about setting up Python environment. Before diving into the tips and tricks, let's make sure you have Python set up on your computer. We will walk you through the installation process and introduce you to popular Python distributions like Anaconda and the integrated development environment of your choice. So, second is embarrassing Python's simplicity. One of the reasons Python is loved by beginners is its simplicity and readability. We will explore some fundamental concepts like variable, data types, operators, and control flow statements and provide tips to write clean and organized code that is easy to understand. And third is utilizing Python's built-in functions. So what is this? Python comes with a rich set of built-in functions that can save you time and effort. We will introduce you to commonly used functions like print, len, range, and more. Learning to leverage these functions will enhance your coding experience and make your programs more efficient. So fourth one is mastering data structures. So Python offers versatile data structures that are essential for organizing and manipulating data. We will cover lists, dictionaries, tuples, and sets, explaining their differences and demonstrating practical examples of how to use them effectively. So number 5 is harnessing the power of libraries. So Python extensive library ecosystem is a game changer. We will introduce you to some popular libraries like NumPy, Pandas, and Matplotlib, showcasing how they simplify tasks like numerical computations, data analysis, and visualizations. Learning to leverage these libraries will boost your productivity as a Python programmer. So 6 is efficient debugging techniques. It's very important. So debugging is an essential skill for any programmer. We will sharing debugging techniques like and tools like print statements, using breakpoints, and handling exceptions to identify and resolve errors in your code. Debugging is a valuable skill that will save you time and frustrations throughout your programming journey. So number 7 is exploring online resources and communities. So Python has a varied and supportive community. We will guide you through some popular online resources, forums, and communities where you can seek help, find inspiration, and collaborate with other Python enthusiasts. These resources will be invaluable as you continue to learn and grow as a Python programmer. So, firstly, we will see our first program. So, firstly is using list comprehension. So we will make a variable numbers in a list 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. After that, square numbers in a list num multiply 2 and 4 num in numbers. तो जो हमारा वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे फॉर लूप के अंदर लेके आ जाएंगे. ठीक है, बस इतना ही है, इसके बाद नहीं. ठीक है, प्रिंट. तो ये हमारा जो यहाँ पे नंबर्स लिया था वेरिएबल के अंदर, उन सब का जो है हमें यहाँ पे स्क्वायर मिल गया है. ठीक है, एक ये था. ठीक है, दूसरा है हमारा अनपैकिंग. मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आइटरेबल.
अनपैकिंग तो ए बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यूज, ठीक है। So Python allows you to unpack iterable like list or tuple into individual variable, which can make your code more readable. Okay, so name value is not defined. Okay, so यहाँ पे हमने वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम एक वैल्यू के नाम से वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज हम यहाँ पे क्या देते हैं लिस्ट के अंदर 1 2 और 3। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, प्रिंट करवा लेंगे ए बी और सी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई ए बी सी, जो भी हमारी यहाँ पे हमने वैल्यू दिया था उसको, वो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगला है हमारा स्वैपिंग वेरिएबल वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे इसमें स्वैपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। So you can swap the value of two variables without using a temporary variable by leveraging tuple packing and unpacking, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू 1 वेरिएबल बनाया, b इक्वल टू 2 दूसरा वेरिएबल है ये, c, और इन दोनों को स्वैप करके देखते हैं, ठीक है। तो a कोमा b और यहाँ लिख देते हैं b कोमा a, ठीक है। हम देख लेते हैं हमारी ये वैल्यू जो है वो स्वैप हुई है या नहीं हुई है। कोड हमारा चल रहा है, इसका मतलब हमारा कोड सही है, कहीं एरर हमारा नहीं आया है, ठीक है। प्रिंट a कोमा b, तो हमारी ये वैल्यू जो है वो स्वैप हो चुकी है, ठीक है। अगला जो है हमारा, अगला है यूजिंग इन्यूमीटर, ठीक है। इन्यूमीरेट, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है। सो मैं वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद लिस्ट के अंदर जो भी फ्रूट्स के नेम हैं हम उसको यहाँ पे पास करते हैं, जैसे एप्पल, ठीक है। और दूसरा लिख लेते हैं बनाना, तीसरा लिख लेते हैं चेरी, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पास करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे चलाते हैं लूप। यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में क्या लिखना है हमें, इसे फ्रूट, ठीक है, फ्रूट इन। अब हमें यहाँ पे क्या चलाना है, इन्यूमिरेट, ठीक है। इन्यूमिरेट क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन, ENUMERAT। उसके बाद इसके अंदर जो हम पास करेंगे वो करेंगे फ्रूट्स को, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा लिखना है हमें प्रिंट, प्रिंट के अंदर इंडेक्स और फ्रूट, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 जो है वो इंडेक्स के उसमें चलाया है। उसके बाद कुछ नहीं, नॉर्मल में प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के बाद जो है ये हमें क्या है, इंडेक्स के फॉर्म में, मतलब 0 पे आया एप्पल, 1 पे बनाना और 2 पे चेरी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा इन्यूमरेट, ठीक है। हम किस तरीके से जो है अपने वेरिएबल में जो है इनको हम इंडेक्स के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, वो है यूजिंग जिप टू कंबाइन, वो कंबाइन आइटरेबल, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यूजिंग जिप टू कंबाइन आइटरेबल। इसके अंदर क्या है, ये द जिप फंक्शन इज हेडली फॉर कंबाइनिंग मल्टीपल आइटरेबल इनटू अ सिंगल आइटरेबल ऑफ टपल, ठीक है। तो इसका कोड किस तरीके से है, देखो, जैसे एक वेरिएबल बना लो नेम, ठीक है। नेम से बनाया, लिस्ट के अंदर जो भी नेम है वो यहाँ पे हम पास कर देते हैं, जैसे रोहित लिख दो, ठीक है। रोहित के बाद मोहित, ठीक है। मोहित के बाद लिख दो धोनी, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एज नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इन सभी की एज जो यहाँ पे वो डाल देते हैं, सपोज करो 25, 30 और 35 डाल दो आगे। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें लूप चलाना है, और लूप के अंदर जो है एज मतलब कि एज को जो है वो जिप में लेके आना है। वो किस तरीके से, वो देखो ऐसे फॉर नेम, ठीक है, नेम एज इन जिप। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जिप के अंदर जो है हमें नेम्स को, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है, हम इन दोनों को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, नॉर्मल प्रिंट के बाद क्या करना है हमें, नेम और एज इन दोनों को यहाँ पे प्रिंट करवा देना। ठीक है, अब देखो हमारा किस तरीके से आया है। जैसे हमने जिप का यूज़ किया है, जिप फंक्शन का, हमारा जो है रोहित जो है वो 25 वाला है, मोहित 30 एंड धोनी जो है वो 35 वाला है। ये क्या है, ये जिप के थ्रू आया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा वो है चेकिंग इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ सबस्ट्रिंग। ठीक है, मतलब हमें जो है इफ कोई हो गया, मतलब स्ट्रिंग कंटेन्स को देखना है कि ये सब स्ट्रिंग है या नहीं। ठीक है, वो देख लेते हैं। चेकिंग इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस जैसे एक वेरिएबल बना लो सेंटेंस के नाम से, एक वेरिएबल बनाया सेंटेंस के नाम से, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया है। इसको लिखने के बाद क्या करना है हमें यहाँ पे इफ कंडीशन चलानी है। कंडीशन में क्या लिखना है हमें, इफ फॉक्स इन सेंटेंस, फॉक्स इन, ठीक है, इन सेंटेंस, तो हमें प्रिंट क्या कर दो, फॉन्ट। ठीक है, एल्स प्रिंट के अंदर नॉट फाउंड। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या फॉक्स हमारा जो है सेंटेंस के अंदर है या नहीं है। तो ये आ गया। ठीक है गाइस, तो ये थे गाइस हमारे आज के कुछ एग्जांपल्स थे और ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे। सो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए जिसके अंदर मैं आपको पाइथन की ट्रिक्स बताऊं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके